ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವೇದಿಕೆ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಮಾನ್ ಅಜರುದಾ. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಬಸವ ತತ್ವ ಪರಿಚಾಲಕರಾಗಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಹೊಣೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹವನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿ ಅನ್ನವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದಿಯೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು, ಹಿಂದಿಯ ಭಾಷೆಯ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಿಂದಿಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹಿಂದಿ ಜರ್ನಲ್, ಬಸವ ಜರ್ನಲ್ನ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಭುಶಂಕರ್ ಪ್ರೇಮಿಯವರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯ ಈಗ ಒಂದು ಗೂಡೋಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿ ಮೆರೆಯೋಕೆ ಕಾರಣ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ. ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ಶರಣರನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ, ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಸಂವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ, 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕರೆಯೋಕೆ, ಸೆಳೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು. ಅದನ್ನೇ, ಇದೇ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಎಳೆಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಮಾನ್ ಅಜರುದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಈಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್ ಅವರು ಬೋಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಶಕ್ತಿಯ ಅಂಥದ್ದು, ಕನ್ನಡದ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಅಂಥದ್ದು. ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಥ ದಿಗ್ಗಜರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕವರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರರನ್ನ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಳೆಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ, ಹಾಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಮ್ಯತೆ ಏನು, ಇವು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ, ಮನು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ, ಮಾನವ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಬನ್ನಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ 3 ದಿಗ್ಗಜರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಬಸವ ತತ್ವ ಪರಿಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಸೆಳೆದಂತ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಜತ್ತಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಂದ ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅರಿವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಚನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಅನುವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ತದನಂತರ ಹೊರ ದೇಶಗಳ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಮಾನ್ ಅಜರುದಾ ಅಂತ ಅಣ್ಣನ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. ಕಾರಣ ಅವರು ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದ್ರು, ಅವರು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಂಧವರು ಅಂತಲ್ಲ, ತತ್ವಶಃ ಅವರು ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಬಹಳ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ MM ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾವು ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೊರಟ್ವಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮುಗೀತು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯೂ ಮುಗೀತು, ಆಮೇಲೆ ಬಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆ ಮುಗೀತು, ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆ ಮುಗೀತು. ಅವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಭಾಷೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ.
ನಮಗೆ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಅವರೇ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಿಕ್ಕೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರನ್ನ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಆನಂದದಿಂದ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಿ, ಅರವಿಂದ್ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಂತ ಆಶಯ ಏನಿದೆ, ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ that you want to spread it to the world, I am with you ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು, ಅರಾಬಿಕ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತವ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಗೆ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಭಾಷೆಗೆಂದು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು. ಎಷ್ಟೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೇಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಶಂಕರ್ ಪ್ರೇಮಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿ. ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಚನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹಿ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಹ್ಯೂಮನಿಸ್ಟ್. ಭಾವಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಖಂಡಿತ. ಅವರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮನನ್ನ ನೋಡುವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರಭಾಶಂಕರ್ आज ये बहुत बड़ा संयोग की बात है, डॉक्टर जमान अजूर्दा हमारे सामने हैं. ये बसो समिति के लिए गौरव की बात है. जब हमने अनुवाद कार्य, वचन साहित्य, वचन का अनुवाद कार्य शुरू किया, भारतीय भाषाओं में अनुवाद कार्य शुरू किया, और उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते हम बंगाल गए, पंजाब गए, बाद में कश्मीर भी गए. कश्मीर में आश्चर्य की बात यह है, सामान्यतः एक राज्य में एक भाषा में अनुवाद होता है, लेकिन कश्मीर में जाने के बाद कश्मीरी भाषा में अनुवाद हुआ, डोगरी भाषा में अनुवाद हुआ, उर्दू का संपर्क और वहीं हुई. उर्दू के संबंध से अरेबिक और पर्शियन भाषा में हुआ. अब उज्बेकिस्तान, अब उज्बेकिस्तान उसके वहां की भाषा में हुआ. तो ये एक विशिष्ट बात है. लेकिन हमारे लिए अजूर्दा जी नए हो सकते हैं, कश्मीर हमारे लिए अपरिचित नहीं है. हमारे यहाँ वचन साहित्य का संबंध 9वीं शताब्दी से है. 9th सेंचुरी में कश्मीर में अभिनव गुप्ता आचार्य हुए. उन्होंने कश्मीरी शैविज्म, शैव सिद्धांत को प्रतिपादित किया. ऐसी जगह है कश्मीर. कश्मीर जो है शैव सिद्धांत के लिए गढ़ है वो. जी, और एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ. वो कश्मीर में शंकराचार्य की भी पीठ भी है. हाँ, सही बात है. 8th सेंचुरी का शंकराचार्य का वो जो अद्वैत सिद्धांत वहीं से निकला. तो ये हमारे लिए गर्व की बात है. एक बात यहाँ ऐड करूंगा. शंकराचार्य से जब कहा गया वहां चलने के लिए, अच्छा, उसने कहा Abdul Gupta is there, no need of my going. अच्छा. और इतना ही नहीं है, अजूर्दा जी ने हमारे लिए विदेशी भाषाओं में अनुवाद के लिए भी एक मौका खोल दिया. ये जो विदेशी भाषाओं का अनुवाद यहाँ हमने शुरू किया बनारस से. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पहले हम लोग विद्वानों को बुला करके, उससे पहले अरबिक और पर्शियन हो गया था, अरबिक और पर्शियन, लेकिन वो सब व्यक्तिगत स्तर पर प्रोफेसर को लेकर के हम ये सब कराते थे. लेकिन विश्वविद्यालय जो इन्वॉल्व हुआ फर्स्ट टाइम बनारस में. विश्वविद्यालय का कनेक्शन दिलवाने वाले भाई साहब. ये sir, you have taken this much of attachment towards the Kannada, Karnataka and Vachana Sahitya. How do you define a culture, Vachana Sharana's life in a sentence? कि जो वचनास है ये कोई पर्टिकुलर फिलोसफी नहीं. इट बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म.
इसका सबसे बड़ा जो फलसफा है वो इंसानियत है, और उसमें ये बात कि हमको सिर्फ अपने को नहीं देखना है, दूसरों को भी देखना है बराबर उसी नजर से जिससे मैं जी रहा हूं उसको भी जीने का हक है। उसमें न कास्ट है, न क्रीड है, न कोई नेशनैलिटी है, जेंडर कुछ कोई जेंडर नहीं। तो वो जो है वो बेसिक चीज है इस पे वचन जिसने हमें ये इसकी तरफ माइल कर दे, वो मैं बताऊंगा अभी। हमारे वो महान लोग बोल रहे हैं, दे आर टेलिंग यूर expertization in Urdu, Kashmir, as well as some other languages also. Being a literature legend, how do you compare the Kashmir philosophy and Urdu philosophy as well as other nations' philosophy along par with Vachana, Sharna's philosophy? नहीं, एक बात सोचने की है that वचना जो है, it pertains to the knowledge of humanity. किस तरह से उन लोगों ने आदमी को देखा है, उसका दर्द महसूस किया है, उसकी भूख महसूस की है, उसकी प्यास महसूस की है। क्योंकि इंसान जो है बेसिकली वो कस्टोडियन है। अगर उसके पास नॉलेज है उसको वो दूसरों तक पहुंचाना है, अगर नहीं पहुंचाता है तो वो ये डिविएट करता है उस ड्यूटी से जो उसकी है। अगर उसके पास पावर है उसको भी उसको दूसरों के लिए इस्तेमाल करना है। पावर ऐसे नहीं जो क्रूवल हो, जालिम हो, उसकी भी मदद करना है। कैसे? जा करके उसके हाथ रोक ले, जरूरत से जा करके उसकी तलवार रोक ले, जा करके मजलूम और उसके बीच में खड़ा हो जाए। और अगर उसके पास ताकत है तो उसको देखना है रास्ते में अगर कोई बोझा नहीं उठा सकता है उसकी हेल्प करे, अगर कोई कमजोर है उसकी हेल्प करे, अगर कोई बीमार है तो उसकी हेल्प करे। इसी तरह से हर चीज में कभी कभी हम सोचते हैं कि जैसे देयर आर एनजीओस, ऑर्फनेजेस हैं, बाकी हैं, लोग उनको चंदा देते हैं, पैसा देते हैं। एक्चुअली वो उन पे एहसान नहीं करते हैं। ऊपर वाले ने हमारी आमदनी में वो हिस्सा रखा है, उनका हमारी ताकत में उनका हिस्सा रखा है, हमारी नॉलेज में उनका हिस्सा रखा है। अगर वो हम हिस्सा अदा नहीं करते तो नतीजा ये निकलेगा कि एक तो ये सब स्टेल हो जाएगा, एक आदमी तक महदूद रहेगा और जिंदगी जो है उस तरह से आगे नहीं बढ़ेगी। रही बात मेरी एक वचना में इतने दिलचस्पी लेने की, पहले तो ये कि कर्नाटका से संभव मेरी दिलचस्पी पहले से थी। जब मुझे 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, इट वॉज वीके गोकाक जिसके हाथों से मैंने लिया। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि कुछ और लोग मिले, अनंत मूर्ति मिले। अच्छा, इसी तरह से अनंत मूर्ति के साथ आप देखिए ना कि जिन लोग के साथ हम रहे हैं, सेतु थे, गिरीश कर्नाड और दूसरे लोग। और हमारे यहाँ मैं जब मैसूर में रहा तो वहाँ किकेरी नारायण एक थे, अब वो नहीं है, तो उसकी बड़ी दिलचस्पी थी वचराज के साथ। और फिर आप यू विल बी सरप्राइज टू नो, मेरा पीए था वो गोपाल, नंद गोपाल, वो वचन गाता था। ऐसा मेलोडियस उसकी आवाज थी कि आदमी वैसे भी न समझते हुए भी इंटरेस्टेड। ये जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर में, मैसूर में मेरा पीए था कोई, तो उसने भी किया। फिर उसके बाद अग्रहारा कृष्णमूर्ति ने, वो जब सेक्रेटरी हुए एकेडमी के, मैं तो उस जमाने से साथ हूँ एकेडमी के, साहित्य अकेडमी के, राइट सिंस 1984। अच्छा, मेरा मामला साहित्य अकेडमी के साथ ये है कि पहले मैंने अवार्ड लिया, उसके बाद उस बिल्डिंग में कदम रखा। मैं पहले आता और फिर अच्छा, उस वक्त ये इंद्रनाथ चौधरी थे, इंद्रनाथ चौधरी वॉज अ स्कॉलर। फिर उसके बाद सचिदानंदन आए, उसके बाद कुछ दिन के लिए अग्रहारा आए, अग्रहारा कृष्णमूर्ति। अग्रहारा कृष्णमूर्ति ने मुझे फोन किया कि सर इस तरह से हम कर रहे हैं ये वचराज का, तो क्या आप ज्वाइन करेंगे कश्मीरी के लिए? मैंने कहा ठीक है, मैं आऊंगा। फिर एक वर्कशॉप में मैं आया, कलबुर्गी जी थे जी, तो और फिर तो थे ही, और मेरे कुछ दोस्त सीपी देवल, उसने वो इसमें किया है, राजस्थानी प्रकाश देवल, चंद्र प्रकाश देवल जी, पद्मश्री, और कई किताबों के मुसन्नफ लिखे, बड़े लंबे कद के हैं, लेकिन अगर किताबें साथ रखी जाए एक के ऊपर एक, वो उसके कद से भी ऊपर हो जाए। और सबसे बड़ी बात, उनके ससुर से मेरी मुलाकात थी
विजयनाथ डेठा, जिसने बड़ा काम किया राजस्थानी लिटरेचर पे, हमारे यहाँ आया भी है कश्मीर, मैंने बुलाया था उसका, मैं बोलता था तो राजा इंद्र हो। एनीवे, तो बहुत बड़े आदमी। तो इस तरह से और लोग भी थे जिनसे हमारी मुलाकात भी थी। बहुत अच्छा लगा जब ये गुफ्तगू हुई इस पे, जब कन्वर्सेशन, उसमें मुझे सबसे बड़ी बात जो थी वो ये लगी कि ये मैं क्या कहूँगा, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कलबुर्गी जी थोड़ा हार्श थे, थोड़ा तेज थे वो। और फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज में ये हर वक्त तेजी नहीं चलती है, कभी कभी बहुत सुनना पड़ता है, जैसे कम जानने वाला उसका सुनना पड़ता है, फिर धीरे धीरे उसको समझाना पड़ता है। लेकिन जब उसने कश्मीरी के बारे में मुझसे बात की और ये वचनास के बारे में उर्दू के थ्रू, अंग्रेजी के थ्रू, हिंदी का वो था, तो मुझे इंटरेस्ट बढ़ा। फिर वो मैंने कश्मीरी का जब किया, फिर मैंने कहा डोगरी में किया, आप लोगों ने कहा नहीं, फिर मैंने डोगरी की टीम तैयार की तो उनके साथ मेरा। फिर मुझे एक स्टेज पे ये ख्याल आया कि अगर ये लिटरेचर इतना अच्छा है, हम इसकी तरफ आ रहे हैं बिल्कुल दिल से, दिमाग से, सोच समझ के, ऐसे नहीं कि बस ऐसे उठा दिया जैसे किसी शायर को दाद देते हैं, या नहीं। तो उससे मुझे ये ख्याल हुआ कि कितनी खयानत है, कितनी कमी है, कितनी खराबी है अगर हम ये नॉलेज जो है ये सिर्फ अपने तक महदूद रखेंगे, दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। तो आई सजेस्टेड कि हमें हिंदुस्तान से बाहर भी देखना चाहिए, इंसान सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं रहते। तब तक के एम कलबुर्गी सर गुजर गए। एम कलबुर्गी साहब नहीं, वो गुजर गए थे। तो खैर मैंने इसमें वो थोड़ा दिलचस्पी ली। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ये कहेंगे, ये कभी कभी ये होता है कि मजहब का भी इसमें कहीं वो आ जाता है। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम अरेबिक। सबसे पहला ट्रांसलेशन जो है अरेबिक और पर्शियन में हुआ, उसके बाद ये फ्रेंच वगैरह हमने वो किया। और वो मगर सर ये अरबिक को जब करते थे आपको सूफी लिटरेचर नहीं, एक तो वो सूफी लिटरेचर का इन्फ्लुएंस, और दूसरी बात यह है कि देखिए बुनियादी बात जो है, भूख हर इंसान को लगती है, दुख पहुंचता है तो हर इंसान होता है, और नॉर्मली हर किसी के साथ देखिए जुल्म होता हो तो फील करता है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि सिर्फ ये एक सियासतदान होता है जिसको गुस्सा नहीं आता है, आप उसको गाली दीजिए, कुछ भी कहिए, वो कैसे काटेगा आपको, दैट इज डिफरेंट। लेकिन गुस्से का इजहार वो नहीं करेगा, फिर भी हंसता रहेगा, गाली सुन के वही एक हंसता है। शरीफ आदमी जो है, ये आदमी रिएक्ट करता है और आम आदमी रिएक्ट करता है। जो हमने जो इसमें देखा है, फिर एक और चीज है, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी है। ये आदमी सब एक जैसे नहीं। हमारी इस वक्त जो क्रिमिनोलॉजी है वो किस पे बेस करती है, डिटेक्टिव डॉग्स पर। और डिटेक्टिव डॉग्स जो है कलर ब्लाइंड होते हैं, उनकी सब चीज जो है वो सेंस ऑफ स्मेल में है। जहां इसका हाथ पड़ता है मुजरिम का, कपड़ा टच करता है, जूता टच करता है, वहां उसके बदन की स्मेल भी लगती है, ऑर्डर, और उसी को सूंघता हुआ उसको पकड़ता है। अब अल्लाह ने क्या किया है, अगर दो आदमियों के बदन की खुशबू मिले तो ठप हो जाएगा नहीं। अनदर थिंग, आज सुबह जो भी अब ये की बहुत बड़ी पोजीशन पर रही है, लेकिन अब क्या होता है, आज सुबह जब ऑफिस जाता है आदमी, सबसे पहले अंगूठा दिखाता है, मतलब बायोमेट्रिक अटेंडेंस। अगर एक का अंगूठा दूसरे के साथ मिले तो ठप हो गया ये कि नहीं। उस पर भी लोगों ने देखा कि चोरी हो रही है, वो प्लास्टिक पे कुछ कर रहे थे, इस तरह से एक दूसरे का कर रहा है, आंखों में रख दिया, उसी से उसको पहचानते हैं कि ही इन पर्सन। इसका ये मतलब है, जब हमारी ये लकीरें नहीं मिलती हैं, जब हमारे बदन की ये खुशबू ऑर्डर नहीं मिलता, उसका ये मतलब है कि आदमी भी थिंकिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन इसमें आपको एकदम आदमी को जानवर नहीं समझना चाहिए, हालांकि जानवर की भी अपनी अहमियत है। आपको ये इसको दे देना चाहिए, ये आदमी है, इसकी सोच कम हो सकती है, ये किसी चीज को किसी और तरह से देख सकता है, मनुष्यत्व तो फिर एक और बात है कि आमतौर पर लोग कहते हैं कि देखने के लिए क्या चाहिए, दो आंखें जो देखने वाली हूँ, और लाइट चाहिए। लेकिन अगर वो लाइट आंखों पे पड़े, ऑब्जेक्ट पर न पड़े, वो नजर ही नहीं आएगा।
हाँ नहीं भाई, अच्छा, फिर डिस्टेंस जितनी लाइट और इसमें होगी, ऑब्जेक्ट और आप में होगी, उससे भी असर पड़ेगा। फिर दिन को देखते हैं, रात को देखते हैं, किस एंगल से देखते हैं, और ये एंगल सिर्फ आंखों का नहीं है, जहन भी ये एंगल्स बनाता है। कभी हमें खूबसूरत चीज भी खूबसूरत नजर आने लगती है। ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड यूनिक, Yes, वो तो सच है। बट hungry and our thoughts towards the eternity will be different. Then how you are going to define this philosophy to Vachana? देखिए, वचना का जहां तक ताल्लुक है, ये बुनियादी तौर पे ये उन्होंने इंसान के बारे में सोचा है। अब इसकी इब्तिदा ही इससे होती है। एक बात लिखी होगी मैंने अभी, जैसे कि सबसे बड़ी बात है किसी चीज को छोड़ देना। लेने के लिए तो सब तोड़ेंगे, लेकिन ये छोड़ना मामूली चीज नहीं होती। बहुत दिक्कत की। बसवेश्वरा ने जिस पावर को छोड़ दिया, आम लोगों में मिला, आम लोगों के साथ एक पार्लियामेंट बनाई, लोगों के दुख सुख को फील किया, उसकी ज्यादा अहमियत है बस इसके कि आप चाबुक लिए हुए कहीं से हुक्म चला रहे हैं। राज्य प्रभुत्व नहीं नहीं, किया। ये हुक्म किया। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने की वो ये कि उन्होंने आम आदमी पे नजर रखी। Democratic. लोग मोस्टली क्या करते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं, सामने नजर नहीं। और आईना तो बहुत कम देखते हैं, सही आईना, सही मिरर जो है वो बहुत कम लोग देखते हैं। फिर वो हमारी आदत है कि हम वो हर चीज जो है कंपैरेटिव लेवल पे देखते हैं। जैसे ये भी पूछ रही थी, कंपैरेटिव लेवल पे, यानी किसी से पूछेंगे व्हाइट क्या है, वो कहेगा, क्या कहेगा बेचारा, वो कहेगा ये काला नहीं है, पीला नहीं है, लाल नहीं है, ये बर्फ जैसा है, ये यानी कुछ सफेद जैसा, कुछ भी लाइट जैसा है। लेकिन सफेद क्या है, इसी तरह से ह्यूमैनिटी क्या है, ये एक्चुअली हम लोग अभी तक भी नहीं समझ पाए हैं। और मैंने जब इसके बारे में कभी भी गुफ्तगू की तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज जो है ये दिमाग को तो छूती ही छूती है, लेकिन ये दिल को छूती है। देखिए, दिमाग में कई चीजें होती हैं, लेकिन दिल जो है वो आदमी का बस दर्द महसूस करता है। तो डॉक्टर ने तो इसको एक समझ लीजिए कि तभी तो अहंकार जागृत होता है। डॉक्टर ने इसको मैंने कहा है कि एक क्यारी का पौधा बना दिया जिसको इधर से के उधर उखाड़ दिया। लेकिन ये दिल जो है अपनी जगह एक समंदर है, इसमें कितनी कितनी किश्तियां पल भर में डूबती हैं, कितनी उम्र के सामने आती हैं, कितने लोग इसको इसके साथ कहना चाहिए। प्रोफेसर जी, आजकल दिन क्या हो रहा है आपको भी पता है। वो क्रीड, कास्ट, वो तो बहुत जागृत हो रही है। ऐसा संदर्भ में वो इतना ऐसा ये पावरफुल लिटरेचर आप पढ़ा हुआ है, उर्दू और कश्मीरी और कन्नड़ा और पावरफुल वचन साहित्य, इसके ये ऐसा हो रही है ना, आपको पता भी है क्रीड के बारे में। क्या संदेश देना चाहती है वो लोगों को? ये वचन जो है, इन्होंने इंसान को देखा इंसान की नजर से। इन्होंने उसको हिंदू की नजर से नहीं देखा, मुस्लिम की नजर से नहीं देखा, ईसाई की नजर से नहीं देखा। नंबर 2, इन्होंने उसको किसी खास दर्जे में काबू नहीं किया, बंद नहीं किया, इंसान को एक समझ के। और फिर दूसरी बात जो इसमें है, डिग्निटी ऑफ वेमेन, बड़ी चीज है। डिग्निटी ऑफ लेबर। अच्छा, डिग्निटी ऑफ वेमेन, डिग्निटी ऑफ चाइल्ड, डिग्निटी ऑफ एल्डरली, डिग्निटी ऑफ वीक, एंड देन डिग्निटी ऑफ लेबर। यानी इसमें जितना जोर इस पर दिया गया है कि हलाल रिज़्क कमाओ, मेहनत करके कमाओ, They transformed it to divinity. मेहनत करके कमाओ, नहीं और कमा के खाओ। इतना इसमें किया है। और फिर लालच के लिए, जिसकी तरफ इशारा ये कर रही थी, लालच के लिए तो वचना मैं खैर उस तरह से अदा नहीं कर पाऊंगा कि वो जब ये सारे नहीं कुत्ते की जो खसूसियत होती है लालच की, वो जब सब एक लाश के गिर्द जमा होते हैं तो ये इसके इधर खाएगा इधर खाएगा, और वो लाश खड़ी होती है तो फिर क्या ಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ, ಕೊಂಡಾದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಚಿಂತೆ, ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಉಂಡುವ ಚಿಂತೆ, ಉಂಡ ಮೇಲೆ ಉಡುವ ಚಿಂತೆ। ये डिग्निटी ऑफ वीमेन जो है, इससे इसको छोड़ के आदमी ने समाज में बहुत सी खराबियां लाई है। यहाँ तक कि मुहावरा ही हमारे यहाँ है कि ज़र ज़मीन और जन ने उसी से ये फितरे होते हैं।
तो ये जो मैं छोड़ने की बात कर रहा था ना, बड़ा सूफी जो होता है वो क्या कहता है अपने स्टूडेंट से, डिसाइपल से, अपने आप को छोड़ दे और चला। अपने आप को छोड़ दे और चला मीन्स अपने ईगो को छोड़ दे, अपनी बिलोंगिंग्स को छोड़ दे, अपनी सोच को छोड़ दे और फिर और प्योर चीजें दे। पहली बात है। अच्छा भाई, एक चीज आदमी के साथ ये भी है, देखिए अगर हम इसको, ये समंदर है ना, उसको पानी के एक सिंपल के तौर पे ले लें। अच्छा, जिस चीज में रखें, जिस कंटेनर में रखें, वही उसकी शक्ल हो जाती है। अच्छा, जो कलर मिला दें वही ऑर्डर, जो उसमें रंग मिला दें वही रंग, जो मजा मिला दें वही मजा होता है। लेकिन जब केमिकली एनालिसिस करेंगे ना, समुद्र से एक ड्रॉप लेंगे, इससे एक ड्रॉप लेंगे, किसी भी कंटेनर से, वही सब दिखाएंगे 2 parts ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 part ऑफ ऑक्सीजन। बेसिकली इंसान जो है ये क्या है, ये सेल्स का एक मजमुआ है, क्या बना है ये। अलबत्ता ये जो सोच हमारी है, ये देखिए, ये टच से आदमी महसूस करता है क्या चीज है, स्मेल से कुछ चीजें महसूस करती है कि क्या है, आंखों से महसूस करते हैं, फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती। आज ही जियोलॉजिस्ट से मुझसे बात हो रही थी, मैंने उससे कहा कि हम शिलोंग जा रहे थे, लेकिन वो बिफोर टाइम ये आ गया, क्या ये ना, ये बिफोर टाइम मॉनसून। तो उसने कहा मानसून बिफोर टाइम जब आया तो कहा कि मैं तो साइंटिस्ट हूँ, समझ ही में नहीं आता कि ये कैसे होगा। मैंने कहा देखो, नेचर जो है ये कुछ चीजें इस तरह से सिखाता है जो आदमी के सामने नहीं होती। तो बहरहाल ये वचनल लिटरेचर जो है आज की दुनिया में इसकी ज्यादा जरूरत है। आप कश्मीर की बात कर रहे थे, आपको मालूम है ऐश्वर्या क्या कहती है, ऐश्वर्या राय, कि मैं कश्मीर की प्रिंसेस हूँ। कुछ ट्राइब्स उस जमाने में आए थे वहां से यहाँ। तो एक हकीकत तो ये भी है, जब एरियंस आए तो कश्मीर पहाड़ों के लोकल जो थे वो डाउन साउथ की तरफ आए, कुछ चीजें अपने साथ लाए। हाँ, आप वचन कहते हैं, कश्मीर में एक फॉर्म है पूरी, उसको वत्सुन कहते हैं। वत्सुन जो है ये हमारी यहाँ साउंड है। हाँ। तो ये मराठी में भी है लेकिन उर्दू में नहीं है। अच्छा, इवन ये पर्शियन में भी नहीं है। ये हालांकि फ्रीक्वेंसीज की बहुत है कश्मीरी। तो वत्सुन से ही शायद ये वचन बना है। ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಚನಗಳು ವಸುನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೂ ಮೂಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯನವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರೋದು ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವೇ ಬಂದಿದೆ. ವಸುನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಆಶಯ ನಮ್ದು. बादशाह है वो जरा भिक्षु बन गए। ये तो ये लेना देना क्या है कश्मीर और कर्नाटक के संबंध में, ये वचन साहित्य के सामने वो कैसे हो गए? वसून बोल रहे हैं नहीं, वो तो नहीं, उसका फॉर्म उसके वजह से। हाँ, ये नहीं, ऑलमोस्ट यही फॉर्म है। ये क्या है? 3 लाइन्स होती हैं, कहीं 4 लाइन्स होते हैं, कहीं 4 लाइन्स होती हैं, कहीं 5 लाइन्स, कहीं 3, एग्जैक्टली इसी तरह से है। लेकिन उसमें एक और रिफ्रेन होता है, बीच में एक चीज जो है वो एक से 1 सेंटेंस वो रिपीट होता है। अब ये देखिए, आप इधर से पढ़ते हैं ना? अब राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अब ये है ना, ये 604 वाला जी, ये ಅವರು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ವಚನ ಗ್ರಂಥ, ಅವರೇ ರಚಿಸಿದ್ದು ಅದು. ಇದು ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬಸವ ಸಮಿತಿಗೆ, ಆದ್ರೂ ಬರೆದವರಿಗೆ. ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ಬೋಲಿ जिल्ले हवा संगतोस ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣ ನೀವು. Sindre Bor. ಹಾ, Jille Schwintok ಹಾ, Beshakliers. ಹಾ, Das Dodchawan. ಹಾ. Das Dodchawan. आसमान ओसन मौजूद नहीं। Nindre Bor तो उस बंद बमत गहेश्वर जो जन के सभी ಗುಹೇಶ್ವರ. ಮಹೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಈ ವಚನ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 809ನೇ 609ನೇ ವಚನ. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾ,
ಅದೇ ಈಗ ಅದೇ ವಚನ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಚನವನ್ನೇ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಮನವಿ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. आप बोलिए एक वर्ड, बाद में हमारा अध्यक्ष साहब बोलते हैं. एक बोल. ಇಲ್ಲಿ ಹವಾ ಶಂಗಿತು ಹೇಳಿ. ಆನಂದ್ ಭೋಜನವು ಸಿಂದ್ರಿಬು. ವಾಯು ನಿದ್ರೆಗೈದಡೆ ಆಕಾಶ ಜೋಗವಾಡಿತ್ತು. Yeah. ऐसे feel Oh, yeah. ऐसे feel ऐसे express किया. See. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Next. ಡೋಟಫುಲ್ ಜಂತಕೋ ಆಬಸ್ತ ವ್ಯಾಗನಿಸ್ಟ್. ಬಯಲು ಬಳಲಿದನೆಂದಡೆ ನಿರಾಳ ಮೊಳೆಗೊಟ್ಟಿತ್ತು. Oh. ಕೋಪೋರಂ ಜಂತಜುತ್ ನಾರ್ಜಸ್ವನ್ ನಕಾಫ್ತರ್. ಆಕಾಶ ಒಡಗಿತ್ತು, ಜೋಗಳ ನಿಂದಿತ್ತು. Ah. Serious zutsen. Zant was einige Christmas. ಮಹೇಶ್ವರನಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ. Baswan. Guheshwar. Sharan which ne sons. Rasans मेहरबानी. Ah. जबरदस्त चीजें हैं. नहीं वो एक वो में ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ. In. जी. Yeah. Beautiful. आप और एक वचन बोलिए उनका ಕನ್ನಡ. ಇದು ಕೇಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ಅವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಅದರ ಅನುವಾದವನ್ನ ಮೂಲ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷಾನುವಾದ. Temsilci lükçü katipet televizyon kan. Temsilci lükçü katipet televizyon kan. Ki şiva miak zor dar çıtakti şiva. Ki şiva miak zor dar çıtakti şiva. Yakşı teli kâizi prat. Zardaras mor. Yakşı teli. क्या इसे प्रत जरदारस मोट जेते आख जोरदार şu tartışıva dünya sığıt रिश्तों कलबोट क्या इसे प्रत जानदारस मन şu भगवान प्रत जानदारस मन şu भगवान तेल क्या इसे सजा जजा अजाब सवाब फसब तवई भगवान şunu प्रत जानदारस मजासना भगवान दोबारा zön vücud mut nimo treşev nişin ಮಾವರಾಸು ಭಕ್ತ ಸುಮಸೋಸ ಕೊಡ್ಲ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅನ್ನವರೇ, ಈಗ ನೀವು ಈ ವಚನದ ಚನ್ನಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ವಚನ ಯತ್ರ ಜೀವಸ್ತ್ರ ಜೀವನೆಂಬ ಬಾಲ ಭಾಷೆಯ ಕೇಳಲಾಗದು. ಶಿವ ಯತ್ರ ಜೀವಸ್ತತ್ರ ಶಿವನಾದರೆ ಜೀವಂಗೆ ಮರಣಬೇಕೆ. ಯತ್ರ ಜೀವಸ್ತತ್ರ ಶಿವನಾದರೆ ಜನನ ಸ್ಥಿತಿ ಮರಣ ರುಜ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಬೇಕು. ಯತ್ರ ಜೀವಸ್ತತ್ರ ಶಿವನಾದರೆ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲ ಕಲ್ಪಿತಬೇಕು. ಇದು ಕಾರಣ ಯತ್ರ ಜೀವಸ್ತ್ರ ಶಿವನಲ್ಲ ಉತ್ಪಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಾಯ ರೈತನು ಸದ್ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಚೆನ್ನ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಚನದ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಷ್ಯನ್ ಸಮಾಜ 10 ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ಇರ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ಇರ್ಬೋದು, ಮರಾಠಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲಯಾಳಂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಕುಳಿತಾಗ ಈಗ 231ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 231 ವಚನಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು 10 ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ 10 ಭಾಷಿಕರಿಗೂ ಕೂಡ ವಚನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಂದೋ ಒಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಭೆ ಮಾಡಿ 40 ವಚನಗಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಫುಟಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ದಿನಗಳು ಆಗ್ತದೆ. ಇವ ನಾರವನೇ ಜನಿಸದಿರಯ್ಯ. ಇದು 40 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಧ್ವನಿ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಬಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರತ್ತೆ, ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ತದೆ.
ಆ ಬಸವ ಆ ಚೈತನ್ಯವು ಕೂಡ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಹೌದು ಎನ್ನಲೇಬೇಕು ಕುಂಡಲ. ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಒಂದು ಕೂಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆ ರಿಂಗಣನ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಕನಸು ನಮಗೂ ಇದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಲಿಂಗ ಧ್ವನಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ತೀವಿ, ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಪ್ರೇಮಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಬೋಲಿ. इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ, वचन साहित्य जो है पहले वो कन्नड़ भाषा के लिए सीमित था, संस्कृत में भी नहीं था, इसलिए सारे भारत में प्राचीन काल में वो उसका प्रसार नहीं हुआ. नहीं तो शंकराचार्य के बाद इनका नाम आ जाता, कबीर का नाम आ जाता, कबीर के बाद इनका नाम. तो ये जो स्थिति है उससे मुक्त होने के लिए ये जो अनुवाद कार्य शुरू हुआ, इसका परिणाम क्या है एक शब्द में बता देना चाहता हूँ. जरूर आप सारे भारतीय भाषाओं में बता दो. सारे भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद होने के बाद इसके अंदर जो बातें हैं केवल धर्म के चौकट में हम देख रहे थे, उस धर्म के चौकट से बाहर आकर के इसके ट्रायंगुलर सामाजिक और नैतिक, इतना ही नहीं आध्यात्मिक, इस दृष्टि से देखने की शक्ति आ गई. और इतना ही नहीं है, अब अंग्रेजी हो, उर्दू हो, हिंदी, इस माध्यम से आने से आज हमें हिंदी में इस पर लिखने वाले लोग आ गए हैं. बड़े बड़े स्कॉलर्स पेपर में लिखते, पत्रिकाओं में लिखते हैं हिंदी में. हिंदू साहित्य और हाँ, केंद्र साहित्य अकेडमी से भी, हाँ, तो ये काम हो रहा है. और हिमाचल प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी में बसवेश्वर और कबीर पर शोध कार्य हो रहा है, उत्तर प्रदेश में शोध कार्य हो रहा है. और इतना ही नहीं है, बड़े बड़े दिव्य रमेश जैसे दिल्ली गए बड़े बड़े राइटर्स वचन साहित्य में लिखते हैं. कृष्ण कुमार कौशिक नाम से ये जामिया मिलिया के प्रोफेसर है वो, अब वो इस पर काम कर रहे हैं, इस पर पुस्तक लिख रहे हैं. तो ये शक्ति जो है ना, वचन में जो शक्ति है, अब वो शक्ति खुल गई है. अब वचन केवल कन्नड़ नहीं, अजरूद सर, आप बताइए कश्मीर में क्या हो रहा है. कि खुल रहा है, तो आप बताइए खुला है या नहीं. एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो कर्नाटका के रहने वाले हैं, कन्नड़ बोलने वाले जो है, वो लकी फॉर्चुनेट है कि उनकी भाषा में ये वचन कहे गए हैं और इब्तदा वहाँ से होती है, स्टार्ट वहाँ से होता है. और अब 800 साल तक इन्होंने क्यों छिपा के रखा, को आम नहीं होने दिया, मैं समझता हूँ कि वो इधर भी बड़ा जुर्म है. तो इन्होंने असल चीज को छिपा के रखा, उसके लोगों तक आने नहीं दी, क्योंकि ये असल में अमानत है, आदमी की, इंसान की अमानत है, किसी स्टेट की, किसी हुकूमत की नहीं है. इसको इंसानों ने सोचा है, इंसानों के लिए सोचा है. जैसे आपने बताया सही बात है, समाज है, इसने समाज को एक शक्ल दी है. वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, वहाँ मेहनत है, वहाँ चाहत है, उसकी मंजिल है, वहाँ मोहब्बत है, वहाँ इज्जत है, हुर्मत है, और मोहब्बत एक तरह से सबसे. और दूसरी बात जो है, अब जो ये खुलने लगा है, अब जो ये आ गया है, देखिए कश्मीर में भी लोग इस पर काम कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें कुछ वचनासम सिलेक्ट करके उनको आप निसाब में शामिल करें, कोर्स में शामिल करें, ताकि कश्मीर. और देखिए मैंने शुरू कहाँ से किया था, सबसे पहले मैंने कन्नड़ अफसाने कश्मीरी में ट्रांसलेट किए थे, कन्नड़ पोएम्स कश्मीरी में ट्रांसलेट किए थे, मैंने कोयम्पो को ट्रांसलेट किया है. अच्छा, इसी तरह से कितने हम्परा को मैंने ट्रांसलेट किया. अरे सुधा मूर्ति जी का भी, अरे सुधा मूर्ति ने उसकी किताब जो है वाइज एंड अदरवाइज, एग्जैक्टली फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो एक्सपेरिमेंट्स जो उसके हैं. सिंपल सुधा मूर्ति की किताब हमने एक लड़के से वो कर उसमें this literature has influenced you? Yes, exactly. नहीं, not me only. हर साउंड माइंड कोई सही साउंड माइंड असर करेगा.
ये सही। स्लोगनिज्म नहीं है, स्लोगनिज्म हाँ ये sloganism। झंडे वाली बात हाँ वो नहीं। आई मीन झंडे वाली, यानी हाँ सही बात। झंडा लेकर के निकले हो, हाँ वो नहीं। समझने की चीज है ये- और इसको लोगों तक पहुंचाना है। जिसने भी इसको लोगों तक पहुंचाया उसने सवाब कमाया। और ये जो तसव्वुफ है, सूफीज्म, जिस तरह हाँ, से वो फैला है कि उनको कैसे हर चीज में एक वजूद मिला। ये तो वो तो कहते ही हैं कि आप बाहर क्या ढूंढ रहे हैं अल्लाह को, अंदर अंदर वो जंगलों में नहीं है, आदमी के अंदर है। अंदर मंदिर भी नहीं, मस्जिद में भी नहीं। तो वो कहीं वो इंसान के अंदर है, अंदर है। अंदर जान करके देखो उसके। और मैं समझता हूँ कि जरा बीडी जट्टी ने जो इसकी फाउंडेशन रखी है, शायद ये वजह थी कि बड़े नरम हाथों से और ऑनेस्ट हाथों से, हलाल की कमाई से जो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी है, उसी की वजह से ये अब तक आगे बढ़ रहा है। और इसको कुछ ऐसे लोग मिले हैं जैसे अरविंद जट्टी जैसे प्रेसिडेंट, जिनको ये आज चाहे तो क्या नहीं मिल सकता है, लेकिन उन्होंने अपना वक्त, अपनी सोच, अपना सब कुछ इसके जिंदगी से पूरी जिंदगी के इसमें। और हम लोग भी, मैं कहता हूँ मैं खुशकिस्मत, मैं इन लोगों से मिला, मैं प्रेमी जी से मिला, मैं आपसे मिला, मैं कलबुर्गी से मिला, और इस वचनल लिटरेचर से मेरी जान पहचान हुई। और मैं कहता हूँ कि जो इसको छिपा के रखेगा, जो इसको आम लोगों से दूर रखेगा, वो मुजरिम है। और मैंने ये क्यों सजेस्ट किया था कि मैं इसलिए कि इंसान हर जगह बुनियादी तौर पर एक ही है, बावजूद उसके मौसम अलग हैं, उसका लिबास अलग है, उसका खाने पीने का तरीका अलग है, लेकिन बेसिक फीलिंग्स जो है, वो भी पैदा होता है और फिर मर जाता है, उसको भी दर्द होता है, उनको महसूस करता है, भूख लगती है। अच्छा, इसी तरह से ये चीज जो है ये हर एक के लिए, आदमी के लिए है, आदमी से ही लिखा हुआ है इब्तिदा में। ये इंसानियत का खजाना इसमें है, वो आज भी है। ट्रेजर ऑफ ह्यूमैनिटी, ट्रेजर ऑफ ह्यूमैनिटी। सर, ये इंसानियत का खजाना कहने के लिए श्रीनगर में जब हम बैठे थे जी कार्यागार में, कार्यागार के अंतिम दृष्टि में मैं आपको पूछा था, आप सब, आपका मजहब अलग है, फिर भी आप कैसे ये वचनों को अनुवाद करने का एक्सेप्ट किए? तब आप सब मिलके मुझे एक जो बताए, इंसानियत का खजाना है, ये वचन जो है इंसानियत का खजाना है। उसके लिए वचना नंबर 64 कश्मीरी में बोलिए सर, मैं कन्नड़ में बोलूंगा। इंसानियत का खजाना ढूंढेंगे हम। 64 आपके भाषा में दिल खोल के बोलिए सर। बसवेश्वर 64, क्योंकि आपके लफ्ज में सुनना चाहता हूं मैं। 64 कौन है सर? 64 ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ನಿಧಿ, ಇನ್ಸಾನತ್ ಖಜಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವಗಳ ನಿಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಣಜ ನಿಧಿ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕಣಜ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಸಂಖ್ಯೆ 64 ಒಂದು ವಚನ. ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹತ್ರ ಆಗತ್ತೆ. ಇವ ನಾರವನೆಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಮನೆಯ ಮಗನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. कि कैसे आपके भाषा में इसको नॉलेज की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग क्या होती है नॉलेज की? क्वेश्चन। आदमी ढूंढता है, क्वेश्चन, सवाल करता है। जवाब अहम नहीं है, सवाल अहम है। जिसने सवाल किया उसको जवाब कहीं ना कहीं से मिलेगा, वो ढूंढेगा। जो ढूंढेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं करेगा। और ये सवाल सिर्फ दूसरों से नहीं करना है, अपने आप से भी करना है। यहीं से भी शुरू होता है। अब ये देखिए, ये वचन युकुश, वो क्या होता है सर? कुछ ಇವನಾರವ, बताइए सर। ये मध्यवन, इसको मत कहने दो। युचुपानन, ಇವನಮ್ಮವ, ये शुभान मध्यवन ಎಂದನು. कोडला संगमजुवा मेजिन गर्व
नेचर वन। इसमें ये है कि ना ये वो जो है ना वो कब्जा करना, मोनोपलाइज करना, हम इसको पढ़िए ना कन्नड़ में, मेरे पंडे गर्भ नेचर वन नहीं, मैं तुम्हारा हूँ, ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है, ये नहीं है, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे घर का हूँ, तुमने पैदा किया, सबको अपना ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳ ಈ ಅದ್ಭುತ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಇವನಾರವ ಇವನಾರವ ಇವನಾರವನೆಂದೆನಿಸಿದರಯ್ಯ, ಇವನಮ್ಮವ 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 ಎಂದೆನಿಸಯ್ಯ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಜೇನುಗೂಡು ಅಮೃತ ಅಂತ ಇವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಎರಡು ಸವಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ಅರಿವಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅಜರುದ್ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಟು ದ ಕನ್ನಡಿಗ ಆಸ್ ಎ ಕಾಶ್ಮೀರಿಯನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ लिटरेचर, इफ एट ऑल इफ यू फील इट इज ग्रेट लिटरेचर. मैंने ये बात कही, फिर दोहराता हूँ, जरूर. आप लोग खुशकिस्मत हैं, लकी फॉर्चुनेट, आपके यहाँ ये चीज है। मुझे तब पता चला जब आपने इसको मुझ तक शेयर करने की कोशिश की। अगर आपने इसको अपने तक ही महदूद रखा, आपने इंसानियत की सर्विस नहीं की, आपने इसको दूर रखा तो आपने इंसानियत को इंसान से दूर रखा। मैं कहता हूँ कि कश्मीर से कर्नाटक ये फीलिंग्स जो हैं, जो इसमें जमा है, इस मौजूद नहीं, ये यकसान है। आदमी हर जगह आदमी पैदा होता है, बाद में उसको लोग ये वो क्या क्या बना देते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे, और ये आदमी जो है, इकबाल ने भी कहा कि आदमियत एहतराम आदमी, आदमी जो है जैसे हम कहते हैं लिव एंड लेट लिव, आदमी क्या है जो दूसरे आदमी को रिस्पेक्ट दे, उसको रिकॉग्निशन दे, उसको रिकॉग्नाइज करे। तो भाई तुम्हारे भी दो हाथ है, मेरे भी दो हाथ है, तुम्हें भी भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो काबिज हो जाते हैं, कब्जा करते हैं, कोई पानी रोकता है, कोई खाना रोकता है, कोई कपड़ा रोकता है, कोई किसी का नहीं, किसी के जज्बात को उल्टा सीधा वो बना कर कोशिश करता है। मैं कहता हूँ आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, प्रिजर्व करते हैं कि आपने इस लिटरेचर को, इस खजाने को बाहर कर दिया, इसका दर खोल दिया, इसको दूसरों तक पहुंचने की ये सही की कोशिश की, ये दूसरों तक पहुंचे। ये बड़ा कारनामा है इस बसरा समिति का, ये बड़ा कारनामा है उन लोगों का जो इसके साथ जुड़े हैं। मैं भी लकी हूँ, मैं इसके साथ जुड़ गया। ನೋಡಿ, ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ನೀವು ಹೀಗಿದ್ದೀರಾ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್, ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಆಗತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನವಾದಂಥ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ದೀಪದ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕತ್ತಲು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕತ್ತಲನ್ನು, ಆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊರದೋಡಿಸೋಕೆ ಇಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಂತೀರಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್? अजूर्दा जी से आज जो भेंट हुई, उससे ये पता चला कि वचन केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये इंसानियत का ग्रंथ है, इंसान का लिखा हुआ, इंसान के लिए लिखा हुआ और इंसानियत से युक्त ग्रंथ है। इसलिए ये किसी भाषा या भूमि या देश के लिए सीमित नहीं है, ये विश्व के लिए ये साहित्य है, इसी मजहब के लिए विश्व साहित्य है। खास चीज ये भी है इसमें, कुछ लोग जैसे केमिस्ट्री में काम करते हैं, फिजिक्स में काम करते हैं, और कभी कभी अंदर उनके ये होता है कि इससे हम पहचाने जाएंगे, इससे इन्होंने अपनी पहचान बिल्कुल खत्म कर, हाँ ये नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। हाँ आपका ह्यूमन बीइंग्स कि हम वो पहचान तो अल्लाह का चोजन फर्क है, ये यूं ही नहीं होता है, ये नहीं होता। जी, आप लिटरेचर में बहुत काम किया, ये शॉर्ट स्टोरीज, पोएट्री, इंटरव्यूज, एंकरिंग सब करके काउज ट्रीटिंग से बहुत ज़्यादा तक आ गए। या आप इतना काम किया है, तो ये फॉर्मेट ऑफ वचन
वो तो अलग है, हाँ। अलग इंसान से जैसा ये लिटरेचर भी अलग है। आप कैसे देखते हैं ये साहित्य प्रकार को? देखिए जहां तक लिटरेचर का ताल्लुक है, जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, जो हमने जनर्स बांट दिए हैं, जॉन डिफरेंट, जैसे गजल है, नज्म है, क्या क्या है, या फिर वो फूज में भी ड्रामा है, ड्रामा या नॉन फिक्शन में ऐसे है, वो अपनी जगह। लेकिन ये फॉर्म जो है, एक तो ये फॉर्म यूनिक है, या कश्मीर शिवनारायण जो फॉर्म मिलता है वात्सन, वासुन या वासुन ये फिर भी इन्हें बाज मानों में कुछ सूरतों में डिफरेंट है, मगर ये चीज जो है ये महज यानी तफरीह के लिए नहीं है, तफरीह के लिए नहीं। अक्सर लिटरेचर इसलिए भी पेश किया गया है कि या इंग्लिश they have chosen literature for preaching, they have chosen literature for एडवाइजिंग for advising, but it's not that. It is they have tried to understand their own selves, their fellow beings, and it is not to show that we are something. It is just that we are at your service. It's like इनर जर्नी। we are at your service. Help me. ओके, ये लिटरेचर फॉर्मेट जो है You see, actually, this format is there's no fixed lines. यस There's no number of lines. Yes, there's no, yes. fixed- नो रिस्ट्रिक्शन। Anybody can come with an idea and just choose this form. The idea is very important. Number of lines is not important. Rhyme scheme is not important. It is altogether different. एक्सपीरियंस So that means it is closer to हार्ट। there's the human feelings. Now I tell you, we don't have poems like that in our language as these are in English. Now we are trying to get those because we have the rhyme scheme and that काफिया or अदीफ whatever. तो लेकिन poems में वो नहीं था। लेकिन इसमें भी जो है, इसमें the content is important and not that rhyme scheme. ಟೈಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್। ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಥವಾ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ರಭುಶಂಕರ್। आज जमान अजूदा जी से मिलकर के एक विशिष्ट एक संदेश हमें मिल रहा है, अनुभव मिल रहा है, तजुर्बा मिल रहा है कि ये जो साहित्य है हमने अब तक छिपा कर रखा था, केवल कन्नड़ के लिए सीमित ये इस साहित्य को हमारा प्यारा प्लेस सही अर्थ में ये वचन है। वचन का मतलब है बोलना। क्या बोलना है? अपनी बात बोल, दूसरों की बात बोलना नहीं है, एग्जैगरेट करना नहीं है। और साक्षी वचन है, वचन का अर्थ साक्षी भी है, साक्षी है, अपना अनुभव है, वो खुद साक्षी, भगवान को साक्षी बना करके वचन लिखते हैं। तो ये भगवान कोई और नहीं है, हमारे साथ ही लोग ही है। एक इंसान दूसरे इंसान के लिए लिखता है और अपना जो अनुभव है, दुख है, दर्द है, सब कुछ उनके सामने रखता है, भगवान के नाम पर रखता है। तो इस विशिष्ट साहित्य को अजूर्दा जी ने केवल भारतीय भाषाओं में नहीं, केवल कश्मीर की भाषाओं में नहीं, विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद करने के लिए उन्होंने जो उत्साह दिखाया और लोगों को इकट्ठा किए, बड़े बड़े स्कॉलर्स को, he wants to cover the entire Central Asia. हाँ, ये बहुत बड़ा हमारे ताल्लुकात हैं हाँ। literature से। बहुत बड़ा एरिया है, सारे सेंट्रल एशिया को कवर कर रहे हैं। ये साधारण बात नहीं है। दो बातें यहाँ जाने के लिए देखिए, फिर जरा वो रुक के अब दो बातें इंपॉर्टेंट है सारे भारतीय साहित्य में कि 12वीं शताब्दी नहीं, किसी भी धार्मिक अथवा किसी भी संत साहित्य में एक ही समय में इतने सारे लोग नहीं मिले हैं, इतनी सारे संत शरणियां नहीं मिली है एक ही, और इतने 25,000 वचनास, ये तो साधारण बात नहीं है। किसी भी लिटरेचर में एक युग में एक समय में इतना बड़ा साहित्य नहीं है, साथ मिलके नहीं है। इतना बड़ा साहित्य। एक खास बात आप भूल रहे हैं, हाँ, आज की दुनिया जो है हम व्यस्त की तरफ देखते हैं, वो हमें बताएंगे ह्यूमन राइट्स क्या है, वो हमें हाँ, बताएंगे कि मजदूर जो काम करता है इसके लिए क्या कर रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर आप इस्लाम में ढूंढेंगे आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जो इस्लाम से, उन तालीमात से मिलेंगी। हाँ, बस हाँ, ये जो शख्सियत है, हाँ, हाँ, हाँ,
उसके साथ कितनी चीजें मिलती हुई आपको नजर आएंगी। और हक तो ये है कि किसकी हक अदाई नहीं हुई है, उन बेचारों ने किस तरह से क्या क्या करके, कम खा के, कम पहन के, तो जी है, दुख में चल रहे हैं। आज आपके पास इतने साधन हैं, इतनी फैसिलिटीज हैं, उनके पास क्या था बेचारों के पास? और आज व्यस्त क्या बताएगा हमें? हमारे पास बसवेश्वरा है। ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಹುಭಾಷಾ ವಚನ ಅನುವಾದ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 2008ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 2025ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ 2,500 ವಚನಗಳನ್ನು ಆಯ್ದವರು MM ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು. ಅದು ಒಬ್ಬರದಿರಬಾರ್ದು, ಕೇವಲ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇರಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 173 ಶರಣರ ಆಯ್ದ ವಚನಗಳನ್ನ ಅವರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಉಪಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚಿಸಿ ವೀರಣ್ಣ ರಾಜು ಅವರವರು, ಜಯಶ್ರೀ ದಂಡೆ ಅವರು, ಬಸವರಾಜ್ ಪುರಾಣಿಕರವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ MM ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ 173 ಶರಣರ ಆಯ್ದ 2,500 ವಚನಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಅರಿಯದ ನಾನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಈಗ 40 ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರವಿಂದ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, MM ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 340 ಜನ ದೇಶದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬಂದಂತ ಶಿವನಾರಾಯಣರವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನ ತಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಮನ್ ಅಜುರ್ದಾನ್ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಣ್ಣ ಅಂತೀನಿ, ಕಾರಣ ಅವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಚನಗಳನ್ನ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೀನಿ ಅರವಿಂದ್, ನಾನು ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ. MM ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಭಾಷೆ ಇರಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಆ ಕುಲಪತಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ, ಇಡೀ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ. ಅವ್ರು ಹೋದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತವೆ. ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ, ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆಯನ್ನ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ನನಗೆ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಬನಾರಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನನಗೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರೋದರಿಂದ, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ MM ಕಲಬುರ್ಗಿಯವರಲ್ಲೂ ಕಂಡಿದ್ದೆ, ಇವರಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೇವಲ್ಜಿ, ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನನ್ನ, ಇಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಅವತ್ತು 173 ಶರಣರು ಇದನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 440 ವಿದ್ವಾಂಸರ ತಾಯಿ ಈ ವಚನಗಳನ್ನ ಆ ಭಾಷೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಾಗಿದ್ದು ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದವರು ಕುಳಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದವರು, ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಂಥ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಬ್ರರಿಗೂ ವಚನಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೇಪಾಳಿ ಭಾಷೆಯ 23 ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಈಗ ವಚನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೇಪಾಳಿ ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳ ರಚನೆ ಆದವೋ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅನಂತ ಕೋಟಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ಈಗಾಗಲೇ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವಚನಗಳನ್ನು 3 ಬಾರಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮರಾಠಿ ಅಂತೂ 5-6ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುದ್ರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಾಯಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನ ಹೆಂಗ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋ ತನ್ನ ಮೂಲಕ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ, ಜಬ್ ಇನ್ಸಾನಿಯತ್ ಕಾ ಖಜಾನಾ ಖುಲ್ ಜಾತಾ ಹೈ ತೋ ಇನ್ಸಾನ್ ಕೋ ಹಿ ಪಹುಂಚ್ತಾ ಹೈ. ಮೈ ಸಚ್ ಬೋಲಾ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಇಷ್ಟೂರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು.
ತುಳು ಮತ್ತು ಕಾಶಿ ಭಾಷೆ ಅನುವಾದದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಮಿತಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರ ಆಗಮನ ನನಗೆ ಪ್ರಾಣ ಜೀವಾಳವಯ್ಯ. ಅಣ್ಣವ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹೃದಯದ ಮಾತುಗಳು, ಅಂತರಂಗದ ಮಾತುಗಳು. ಅದು ಲಿಂಗ ನುಡಿ ಅಕ್ಕ. ಲಿಂಗ ನುಡಿ. ಹೀಗೆ ಶರಣರ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸರ್ವಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು, ಸರ್ವಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು, ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್. ಅವನ ಕಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರೊಳಗಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅ ಕಿಂಗ್. ಆ ಕಿಂಗು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಆಳುವತ್ತ ಆವಾಗ 600 ಜನ ಅಥವಾ 300 ಜನ ಇವರಿದ್ರೆ ವಚನಕಾರರು. ಇವತ್ತು ನಾಡಿನ, ದೇಶದ, ವಿದೇಶದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ, ನಾಡು ನಾಡಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದಿಟ್ಟವಾದದ್ದು, ಗಟ್ಟಿಯಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಣ್ಣವರೇ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ, ಇಂಥ ಲೆಜೆಂಡರಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೂರದರ್ಶನದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದವರು, ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಇದು ಗುರು ಹಿರಿಯರ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದರ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಅರಿವಿನ ಮನೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬೆಳಕನ್ನ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಬಸವಾ 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 ಹರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಪ್ರಭು ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಗುರು ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಲಿಂಗ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಜಂಗಮ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಭಸ್ಮ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಮಂತ್ರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಪಾದೋದಕ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಪ್ರಸಾದ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಚಿನ್ನಿಧಿ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಚಿನ್ನಾದ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಚಿದ್ಬಿಂದು ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಚಿತ್ಕಲ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಚಿದಂಗ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ನಿರಂಜನ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ನಿರ್ಗುಣ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಅಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಉಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಮಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ನಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಮಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಶಿಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ವಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಯಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಓಂಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಹ್ರೀಂಕಾರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಬಸವಾಯ ನಮಃ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಸವಾಯ ನಮೋ ನಮಃ.
ನೀನೊಲಿದಡೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದಡೆ ಬರಡು ಹಯನಹುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದಡೆ ಬರಡು ಹಯನಹುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದಡೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದಡೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದಡೆ ವಿಷವು ಅಮೃತವಾಹುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದಡೆ ವಿಷವು ಅಮೃತವಾಹುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದಡೆ ಸಕಲ ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನೀನೊಲಿದಡೆ ಸಕಲ ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇದಿರಲ್ಲಿ ಪೂವು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಇದಿರಲ್ಲಿ ಪೂವು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀನೊಲಿದಡೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುದಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದಡೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುದಯ್ಯ